Good morning students, I welcome you to RPS online classes. I hope you all are fine. Students, today we will talk about narration. We talked about narration in our earlier videos also, in previous videos also, and the concept was clear. Today we will talk about how can we change one tense into another tense. You know, when it comes to narration, when it comes to direct and indirect speech, we have to make a change in the tense, as I told you. And I told you that simple present tense will be changed into past tense. Clear? Simple present tense will be changed into past tense. So present will go in past, but how? There are four tenses in present: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Same way, in past also you have simple past. We call that past indefinite also. So simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So while changing one tense into another in narration, we change simple present tense into simple past, present continuous into past continuous, present perfect into past perfect, and present perfect continuous into past perfect continuous. Means simple will go in simple, continuous will go into continuous, and perfect will go into perfect. This way we will change actually. So here today in this video we will talk about present tense only. Okay, when we change present tense into past tense. And which topic we are talking about here? Our topic is narration. Our topic is narration. We call it direct or indirect speech also. So you pay your attention so that we don't miss anything actually. Let us take one example. I have taken here he said. He said, he said, I go to school. He said, I go to school. So this you see. This is which tense? This is present tense. Which present tense? Simple present tense. I told you through a table in previous class. Again I am making that table. Simple present tense will be changed into past simple past tense. This is present, this is past. Clear? So simple present tense will be changed into simple past tense. Clear? So let us change it. This is what we call it, introducing verb, और we call it reporting verb. या तो इसको introducing verb कहो या इसको reporting verb कहो, whatever you want to say. और इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहो, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, जो कि these are the words which were said by the speaker actually. या इसको आप quoted speech भी कह सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हो, quoted speech भी कह सकते हो. That depends on you actually. डायरेक्ट स्पीच और quoted speech. So this is simple present tense. एक चीज और आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, वो ये थी कि अगर ये इंट्रोड्यूसिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तभी इसमें टेंस का चेंज होगा. तो ये देखो, ये पास्ट में है said. क्लियर? तो इसको हम चेंज करते हैं. लेट अस चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो इट्स वेरी सिंपल. मैं यहां लिखूंगा ही सेड. हमें कंजंक्शन चाहिए, दैट कंजंक्शन या कनेक्टर जो कि इन दोनों को जोड़ता है. ही सेड दैट. अब आय का क्या हो जाएगा? ही. गो का क्या हो जाएगा? वेंट टू स्कूल. इट्स वेरी सिंपल. ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल. सारे इन्वर्टेड कोमास भी हमने हटा दिए और ये जो कोमा था यहां पे ये भी हमने हटा दिया. नाउ इट इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट सेंटेंस. क्लियर? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल एंड दैट इज द नेगेटिव ऑफ दिस. हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं जिसमें रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके अंदर आपको नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा. यह है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये प्रेजेंट है. राजू सेड टू मी.
राजू सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि यहां पे हम वो डायरेक्ट वर्ड्स लिखने वाले हैं जो राजू ने कहे। ये कहता कि आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक। सो इट्स वेरी सिंपल, इसको चेंज करते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है। राजू सेड दैट, नहीं सॉरी सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। ठीक है, राजू टोल्ड मी दैट, दैट क्या है? एक कंजंक्शन है, कनेक्टर है, जिससे इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को। सो राजू टोल्ड मी दैट ही, आई विल बिकम ही। अब ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा ये। सो इसको हम करेंगे डिड नॉट। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया, राजू टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट स्मोक। इट इज वेरी सिंपल। चलो इसको हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं इसका। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, राजू सेड टू मी डू यू स्मोक, है ना। ये सेंटेंस लिया है हमने। राजू सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये डायरेक्ट स्पीच कहो या रिपोर्टेड स्पीच कहो। क्लियर? अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? राजू, अब यहां पे ये क्वेश्चन है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन रिपोर्टेड स्पीच, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं, और वो क्या होते हैं उनको हम देखते हैं। यहां से क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं इंक्वायर या आस्क, ठीक है, या क्वेश्चन, इन शब्दों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे राजू आस्क्ड, क्योंकि से पूछा उसने यहां पे। राजू आस्क्ड किससे? मी। अब दैट की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मुझे दैट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ तो चाहिए जो इसको कनेक्ट करेगा, वो कंजंक्शन या वो कनेक्टर क्या हो जो इसको इनको जोड़े। तो हमारे पास यहां पे दो वर्ड है, एक है इफ, ठीक है, और एक है वेदर। इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। राजू आस्क्ड मी इफ आई, अब ये डू का तो डिड होगा नहीं, लेकिन स्मोक जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड फॉर्म स्मोक्ड, वेदर आई स्मोक्ड, और यहां पे आपका स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। यानी आप इसको कैसे रीड करेंगे? राजू आस्क्ड मी इफ आई स्मोक्ड, या राजू आस्क्ड मी वेदर आई स्मोक्ड। सो डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, व्हेन देयर इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है यहां पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो यू विल नीड इफ और वेदर। लेकिन इफ और वेदर हमें आपको तब चाहिए जब यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये यस और नो का क्वेश्चन है। देखो, यस और नो का क्वेश्चन है, कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं पूछी हमसे। देखो, डू यू स्मोक, आंसर या तो यस होगा या नो होगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन में यहां पे एक क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड लिखते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को, इसी स्टेटमेंट को आगे एक्सटेंड करके आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि उसको फिर हम कैसे चेंज करेंगे। देखो, राजू सेड टू मी, ठीक है, वाई डू यू कम लेट, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। वाई डू यू कम लेट, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था। राजू सेड टू मी वाई डू यू कम लेट, तो यहां पे इसने क्या यूज किया है? एक क्वेश्चन वर्ड यूज किया है जो कि WH वर्ड है। ये भले WH वर्ड ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? स्टार्टिंग तो वैसे ही होगी, राजू आस्क्ड मी, क्योंकि पूछा है उसने मुझसे, यहाँ पे ही हैड क्वेश्चनड मी। सो राजू आस्क्ड मी, तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? एक कनेक्टर चाहिए, कनेक्ट करना है दोनों को। तो यहाँ पे ना तो मुझे इफ चाहिए ना वेदर चाहिए, मैं इस वर्ड को ही, WH वर्ड को उठा के यहाँ ले आता हूँ, एंड आई विल मेक इट ए कनेक्टर और कंजंक्शन। इसको जोड़ देता हूँ यहाँ से, तो ये बनेगा राजू आस्क्ड मी व्हाई आई
कम का हो जाएगा केम लेट एंड दिस इज द सेंटेंस, आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है। सो दिस इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस विल गो इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव विल गो इनटू पॉजिटिव, इंटरोगेटिव विल बी चेंज्ड इनटू इंटरोगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें दो चीजें हो गई हैं यहाँ पे, जब हमने इसको चेंज किया है तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया है। वी कैन कॉल इट, वी कैन से इट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सेंटेंस यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल के यहाँ आ गया। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कौन सा हमने चेंज किया है? सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में चेंज किया, नरेशन में। क्लियर? इससे आगे चलते हैं और इससे आगे हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? कैसे? राजू को ही लेते हैं, है ना, राजू फ्री है, खाली है तो राजू को यूज करते हैं। राजू सेड, क्या कहा उसने? आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है जी, क्या कहा उसने? आई एम गोइंग टू मार्केट। तो कौन सा टेंस है ये? बिफोर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट the tense of the direct speech. Here in the direct speech, which tense we have? This is present continuous tense. When we have recognized a tense of the direct speech, then we will find out in which tense we will change. किस tense में change करेंगे? तो हमें पता है कि present continuous tense को हम past continuous में change करते हैं, and we know the structure of past continuous. उसमें क्या यूज होता है? was, were and ing form. We already know. तो let us change it. हम इसको चेंज करेंगे, राजू सेड दैट। अब यहां क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव हो तो भी, पॉजिटिव हो तो भी, किससे जोड़ेंगे? दैट से। ये जोड़ने का काम करता है किसको? इसको। ये यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है और यहां से यहां तक डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। दोनों को दैट से जोड़ देते हैं बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। राजू सेड दैट, राजू सेड दैट, आई को क्या कर देंगे? ही, और यहां एम का क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है, हमें पता है, वर तो लगता नहीं। सो राजू सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक क्लास है, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही बेसिक क्लास है। अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको बाकी दिक्कत नहीं आएगी। व्हेन यू फाइंड आउट द एरर्स, व्हेन यू सोल्व द एक्सरसाइजेस, you will not face any problem. So समझो इसको। तो हमने क्या किया यहाँ पे? simply present continuous tense has been changed into past continuous tense. Clear हो गया? इससे आगे चलते हैं। now let us take negative sentence. इसी को नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? राजू said, क्या कहा उसने? I was not fighting। चलो, I was not fighting कहा है उसने, यानी सॉरी, I am not fighting। कौन सा टेंस किसको डिस्कस कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बट दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। तो कैसे चेंज करेंगे इसको? बड़ा आसान है। राजू सेड, तो वी विल जॉइन इट विद दैट। राजू सेड दैट ही, और यहां क्या हो जाएगा? वॉज नॉट फाइटिंग। सो दिस इज वेरी सिंपल आई थिंक फॉर यू। नरेशन डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। राजू ने मुझे कहा था आई एम नॉट फाइटिंग, मैंने किसी और को जाके बता दिया राजू सेड दैट ही वाज नॉट फाइटिंग। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज। क्लियर? और आगे चलते हैं और अब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ लेकर चलते हैं। इंटरोगेटिव कौन सा? जहां पे केवल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, आंसर जो यस और नो में है। ठीक है, मैंने कहा राजू सेड टू मी, क्या उसने पूछा? यहां उसने पूछा है, ये इंटरोगेटिव है कि वे आर यू कॉलिंग मी, ये सेंटेंस है। आर यू कॉलिंग मी? क्लियर? आर यू कॉलिंग मी? राजू सेड टू मी, आर यू कॉलिंग मी? क्लियर? चेंज कर देते हैं। राजू, अब यहां पे चूंकि क्वेश्चन है तो हमारे पास मेनली 3 वर्ड्स हैं, क्वेश्चन या फिर आस्क या फिर
क्वेश्चन यूज कर सकते हो, आस्क यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हम आस्क यूज करते हैं, राजू आस्क, ठीक है। राजू इंक्वायर भी यूज कर सकते हो, 3 वर्ड्स, इंक्वायर यूज करो, क्वेश्चन यूज करो या फिर आस्क यूज करो। राजू आस्क्ड मी। अब यहां पे इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, दैट तो आएगा नहीं क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो राजू आस्क्ड मी, यहां लगाऊंगा इफ। वेदर भी यूज कर सकता हूं, राजू आस्क्ड मी इफ। यू का क्या होगा, मुझसे कहा था, तो ये यू कौन था, ये तो मैं था, जब उसने कहा था तो मैं था ना। तो यहां पे इफ आई वॉज, बिकॉज इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इफ आई वॉज कॉलिंग हिम, क्योंकि ये मी कौन था, ये मी राजू था, जब उसने कहा था तब। नाउ देयर इज फुल स्टॉप, राजू आस्क्ड मी इफ आई वॉज कॉलिंग हिम। दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। क्लियर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और दिस टाइम हम लेते हैं एक WH वर्ड, एक क्वेश्चन वर्ड, यानी अगेन वी विल हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस बट विद क्वेश्चन वर्ड। राम said to his father, राम said to his father, क्या कहा कि भाई how are you coming, ऑफिस से आ रहे हैं, how are you coming from office, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमास हो गए। राजू सेड टू हिज फादर हाउ आर यू कमिंग फ्रॉम ऑफिस। क्लियर। चेंज करते हैं इसको, ये हाउ क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो यही क्वेश्चन वर्ड आगे चल के हमारे लिए कनेक्टर कंजंक्शन का काम करेगा। देखते हैं, यहां राम आस्क्ड, पूछा है, यू कैन यूज इंक्वायर्ड ऑल्सो, राम इंक्वायर्ड हिज फादर, राम इंक्वायर्ड हिज फादर हाउ, इफ और दैट, वेदर नहीं होगा ना, दैट होगा। राम आस्क्ड हिज फादर हाउ, यू कौन है, ही, आर का क्या हो गया, वॉज, कंटिन्यूस का कंटिन्यूस रहेगा, ही वॉज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, सारे कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क सब रिमूव हो गया है, एंड नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट, एक सेंटेंस हो गया है। तो समझो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड मैं समझ सकता हूँ ये बहुत इजी है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, दोबारा से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कब नहीं आएगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर। तो अब देखते हैं, जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में चेंज हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अभी देखते हैं, वेरी सिंपल। फिर से आते हैं राजू के पास, राजू ने कहा, राजू सेड आई हैव टेकन टी, ठीक है, ये राजू ने कहा, तो कोई बात नहीं, ये कौन सा टेंस है, चेंज करने से पहले क्या देखना है हमें, पहला स्टेप ये होता है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसको क्या बोलते हैं हम, फिर से बता रहा हूं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, ये पास्ट में नहीं है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, दैट्स इट। क्लियर। तो ये तो पास्ट में, इसका टेंस चेंज हो गया, टेंस है कौन सा, पहले तो पहचानो, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। क्लियर। तो मैं चेंज कर देता हूं कि राजू सेड दैट से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। राजू सेड दैट, अब ये ही और हैव का क्या हो जाएगा, हैड। वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बी कहते हैं। सो राजू सेड दैट ही हैड टेकन टी, ये तो बड़ा सिंपल है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं कि भाई राजू सेड क्या कहा उसने, आई हैव नॉट गॉट रेडी, ये तैयार नहीं हुआ है भाई,
इसने कहा कि मैं आई हैवंट गॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हुआ हूं, तो क्या करूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं ना, बड़ा आसान है। राजू सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैड, क्योंकि सबके साथ हैड यूज होता है पास्ट में। राजू सेड दैट ही हैड नॉट गॉट रेडी एंड फुल स्टॉप, सारे कोमास, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, फुल स्टॉप यहां हटके सब सारा, यहाँ एक फुल स्टॉप आ गया क्योंकि वन सेंटेंस हो गया है। राजू सेड दैट ही हैड नॉट गॉट रेडी, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करके देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे यूज होगा। तो वही तरीका है, अगर केवल हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया गया, यूजिंग डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, शुड, के, मे, माइट, सब हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि उसका आंसर यस और नो ही होता है। मैं आपसे पूछूंगी कैन यू रन, तो आपके दो ही जवाब होंगे, या तो यस या नो। डू यू स्मोक, दो ही जवाब होंगे, या तो यस या नो। आर यू गोइंग, दो ही जवाब होंगे, या यस या नो। हैव यू टेकन टी, दो ही जवाब होंगे, या तो यस या नो। तो ये जो यस नो का आंसर है, यहां आपको ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव में हम उसको इफ या फिर किससे जोड़ते हैं, वेदर से जोड़ते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं फिर से कैसे जोड़ेंगे इसको। राजू, ठीक है, सेड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से इसने क्या कहा कि भाई हैव यू, ये भी ध्यान रखना है आपको, जब इन्वर्टेड कोमास के साथ आप स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। हैव यू टेकन फूड, ये उसका क्वेश्चन है। क्लियर। तो हम इसको चेंज कर देते हैं भाई, राजू ने तो उसके दोस्त से कहा था, ठीक है, दोस्त ने मुझे बताया, क्या बताया, उसने कहा कि भाई राजू आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन है यहां पे, राजू आस्क्ड मी, राजू आस्क्ड हिज फ्रेंड, चेंज करेंगे तो राजू आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, इफ ही हैड टेकन फूड। ये ध्यान रखना है आपको, ये वापस से क्वेश्चन में नहीं आएगा, वापस से क्वेश्चन इसका नहीं बनाना है आपको, ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहां पे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहां इसको हम पॉजिटिव बना देंगे और सब्जेक्ट पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में, यानी सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, अब यहां क्वेश्चन है, ये यहां नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। और ये राजू आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही हैड टेकन फूड, और ये फुल स्टॉप हो गया। क्लियर। इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, इस बार हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ में। क्लियर। और उस क्वेश्चन वर्ड को ही एक कनेक्टिंग वर्ड बना के हम चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू मी वाई, या सिंपली हाउ मच लिख देते हैं, हाउ मच मनी, इन्वर्टेड कॉमास, हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट, ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया भाई। श्याम सेड टू मी हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट, चेंज कर देते हैं, श्याम, ठीक है, आस्क, पूछा तो है ना उसने, क्वेश्चन मी, इंक्वायर्ड मी या आस्क्ड मी, कुछ भी कहो, श्याम आस्क्ड मी। अब इसी को हम बनाएंगे कनेक्टर, जोड़ेंगे इसी से, हाउ मच, लेकिन ये यहां कैपिटल है, यहां कैपिटल नहीं होगा। श्याम आस्क्ड मी हाउ मच मनी, यू का हो गया आई, क्योंकि मुझसे कहा था, हैड स्पेंट। ये देखो जी कितना आसान है, कोई डाउट
नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहीं पे नहीं रुकना है, आप कम से कम एक टेंस के 5 to 7 और 10 सेंटेंसेस को चेंज करो, तभी आपके दिमाग में फिट बैठेगा एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। Got my point? Now let us move on to next tense and that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में, इन डायरेक्ट स्पीच इफ यू फाइंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देन हाउ विल यू चेंज दैट? दैट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। लेट मी इरेज इट एंड I will have another sentence for you here. He said, क्या कहा उसने? I have been playing for 2 hours. ठीक है जी, ये इसने कहा for 2 hours. He said, I have been playing 2 hours. I कौन है? ये ही है। क्लियर? इसको चेंज करने का तरीका क्या है? सिंपल सा है। ये कौन सा टेंस है भाई? देखो जरा ध्यान से समझो इसको। ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, इसको चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस टेंस में चेंज होता है? बड़ा सिंपल है जी, वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? हैड, बीन एंड वर्ब की एनजी फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ चेंज कर देते हैं ही said। क्लियर? दैट, अब यहां दैट चाहिए हमें कनेक्ट करने के लिए। ही said that he had been playing for 2 hours। फुल स्टॉप हो गया, सारे कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास सब हट गए। ये करिए तो आए तो हमेशा कैपिटल ही रहता है। क्लियर हो गया? और आगे चल पड़ते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस। वो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इसका कि वो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे। आई सेड टू माई फ्रेंड। ठीक है, मैंने अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? मैंने कहा आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ये कहा मैंने। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देते हैं। मैंने क्या कहा कि आई सेड टू माई फ्रेंड आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, चेंज कर देते हैं इसको किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर आ जाते हैं। आई सेड टू को किस में चेंज करें? टोल्ड में कर देते हैं। आई टोल्ड माई फ्रेंड। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट। दैट कनेक्ट करेंगे दोनों को। ये इंट्रोड्यूसिंग वर्ब है, ये डायरेक्ट स्पीच है। दोनों को कनेक्ट किससे करेंगे हम? दैट से। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई हैव का हो गया हैड नॉट बीन स्टडिंग since morning। क्लियर हो गया? सो दिस इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। क्लियर? आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इसको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी ले लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, इंटरोगेटिव कैसे लेंगे? आई सेड टू माई फ्रेंड। ठीक है, आई सेड टू माई फ्रेंड, क्या कहा मैंने कि भाई हैव यू बीन, इसको मैं हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour? क्वेश्चन मार्क हो गया ना, और ये इन्वर्टेड कोमास में, ये भी इन्वर्टेड कोमास में, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसको कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा ये? तो क्या हो गया? आई
अभी क्वेश्चन है तो यहां हो जाएगा आस्क्ड, किससे, माय फ्रेंड, आई आस्क्ड माय फ्रेंड। अब इफ से इसको कनेक्ट करेंगे, इफ he had been, if he had been waiting for me for 1 hour, it's very simple, full stop और एक स्टेटमेंट हो गया है। I asked my friend if he had been waiting for me for 1 hour, full stop। और इसी तरीके से आप इसमें क्या यूज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब यूज करेंगे तो होगा। यहीं पे बना सकते हैं, मैं इसको यहां कर सकते हैं, मैं यहां वाई लिख देता हूं, वाई हैव, है ना, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसका सवाल ये होता कि आई सेड टू माय फ्रेंड, ये होता कि मेरा क्वेश्चन ये होता कि वाई हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour, क्यों वेट कर रहे हुए घंटे से, तो क्या करते, इस इफ को हटा देते, ये वाई आ जाता। आई आस्क्ड माय फ्रेंड वाई ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो मैंने समझाया है 6 क्लास से स्टार्ट करते हैं, 7th 8th 9th 10th 11th लगातार वही चीज़ चलती है। और बिना नरेशन के, बिना इनडायरेक्ट स्पीच के आप कभी भी अपनी रिटन जो आपकी स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आज आप इस चीज़ को समझेंगे और देखेंगे कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है। राइटिंग नहीं, इट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग skills also. So students, this was all from my side today. We talked about narration. We changed present tense into past tense. Clear? It was very simple topic. Solve the exercises, as many exercises as you can. You must solve actually. I will send some exercises for all the students. ठीक है? तो इन्हीं words के साथ में I wind up my class for today. Thank you very much.